Hello guys, welcome back to my channel. I hope every one of you is doing well. This is Neers and today I'm going to do a video reaction about The Education is a Trap by Soklin Khan. Let's get it started. Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट कर रहे हैं. Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है. ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है. To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ वो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम पे असाइनमेंट्स कर रहे होगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे. बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए. 30 साल. पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया. मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर. आप 15 साल में Guys, but education is very, very important. It doesn't mean like you should not go to school and you should not complete your degree. I know the education we get in our school is not practical in our like real life. Most of it are like I even don't remember where I used that a square minus b square formula in my real life, but it doesn't mean like education is not important. This is most essential things, right? So we must all complete our degree because that education gives you different perspective, that sets your mindset. I know like just by completing your degree, even if you are a PhD holder, and that doesn't make you rich, but if you don't have a PhD also that doesn't make you rich, right? For me, holding a degree is most necessary. This very, very important thing, because if you are educated, then only you can learn so many things on your own. Like you can think differently, your perspective will be changed. So getting education, it doesn't mean that you will be rich. So this is not the main motive of getting education. Getting education is getting knowledge. मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है. आप ना जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है. लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं. देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर. और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक. दुख है सर, क्या बोलूँ. मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर. बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया. This is so sad. This is so heart touching because I have faced this too. When I completed my bachelor's, it was so difficult for me to get a job. But it doesn't mean you should not complete your bachelor. Not everyone's life is like Mark Zuckerberg's, like Bill Gates, right? Not everyone can do what they did. So not everyone can become a millionaire. Not everyone can become a Elon Musk. It's not like that. So there are so many people who are dependent on a single job, and then like they are doing it still fine. So if you don't have education, cannot even apply. In this case, he's just trying so hard on the basis of his degrees. But if you even don't have a degree, then you cannot even apply. You don't even have an option. So guys, just complete your bachelor's. So I'm regretting because I haven't completed my master in time. Let's say the guys who did bachelor's with me, they have like most of them have completed their masters and they are in a level in their life. So for me, like I haven't done my master's, I kind of regret it. So education is important. It's a trap, one way, but another way, it's very, very important.
हमारे पर एफआईआर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो रो के बस एक ही प्रे करते रहते हो कि गॉड किसी तरीके से एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा कर कर एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आप Guys, education doesn't make you rich. Education makes you a man. Education makes you knowledgeable, but not rich in money. For that, you must have financial knowledge. So the financial knowledge, what gives you financial knowledge? Education. But it's all up to you, like how you perceive your education. You know what I mean? The thing you learn in a school, you should be able to apply it in a practical knowledge. The main motive of getting education is not becoming a rich, for me at least, because if education can make you rich, then every person who has a degree should become a millionaire, right? It doesn't happen. And the financial knowledge you have, the money you have, the background you were born in, the practical knowledge you had during your childhood, all those things matters. And the decisions, the money you put, the investment you make, your savings, all those things comes together to make you a millionaire, or to make you rich. Not only the education or a degree cannot make you rich. आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल का फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम में घर आते हो, फिर चाहे वो काम करना आपको पसंद हो या ना हो। और फिर This is the story of every middle class family, including me too. But why to take a home loan? I mean, why to take a car if you don't have a money, if you cannot afford it? Don't take a loan and buy such luxurious things, or let's say buy such like assets which depreciates every month or every year. That becomes your liability, right? If you take a loan, then that's your liability. Most of your salaries will go to pay the interest, and you can never make savings, you can never make investment. That's why you can never become rich. So don't take loan, don't take like big house, don't take expensive cars if you cannot afford it. Just buy a cycle, rent a room, and then adjust there till you have like good income, till you make good investment. When your things are getting better, then you can move to a big house or something like that, but not in the beginning. एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसीलिए मैं लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब किया था, पर सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज। But for me, luck also matters a lot. Hard work is for me 70% hard work and 30% is your luck, because I have seen such people who are not educated, but their small decisions make them so rich, and it also depends on their luck too. They were so lucky that whatever they did, that was so much fruitful for them. But that cannot be the case to everyone's life, right? Let's say if me and my friend start doing business, let's say I open a cafe in one place and then he opened a cafe in another place. If I am lucky, then my cafe will do much more better than his cafe. So luck also plays a vital role. आज तक आपसे छुपा कर रखा गया है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system, because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम I don't agree. I know there are so many unlogical things in the education system, but I don't believe that education system has been made just to make us fail. I don't think in that way. सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स और उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा ट्रैप खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विथ मी? धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there.
साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वॉर होता है और इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? प्रशिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। और इस तरीके से Does it make sense in our real life? Today's scenario, does it make any sense? For me, see, I see things differently. So I'm not favoring the education, but still, yeah, education is very, very important. He is saying our education system has been made just to make us like slaves. He's saying in that way, but educated person also has become a millionaire. Educated person is also become so much richer, right? We cannot just take an example of few people who have been successful and who are not educated, or let's say who just drop out of the university. We cannot make a decision like, every educated person cannot become a millionaire. So there are so many uneducated people too who are not doing well. They are not even getting a good job. They are just have to do a labor just because they don't have a degree, they don't have an education. I don't know how this is making any sense. Anyway, let's get continue. Maybe I'll be more clear. एक 8 years education system build होता है, the Prussian education system। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जेनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडिएंट हो, अपने सुपीरियर्स के हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर के एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। एंड प्रशियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज था जो इस वर्ल्ड में बहुत ही तेजी से फैल रहा था। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। ओके, सो अगर लोग एजुकेटेड ना होते तो ये कर पाते क्या? हाउ कैन दे मेक revolution if they are not educated? How would they make all those strategies? How would they make all those plans? How would they make all those developments, all those designs, like everything? अगर मैं एजुकेटेड ही नहीं हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे डेवलप करूंगा? लेट्स से अगर मुझे एक घर बनाना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस, हाउ आई वांट इट, like how I want my bathrooms to be, where to place my rooms, my kitchens, the stairs, everything, right? And then I need to hire an engineer, and then I need to describe him that I want my house in this way. And तब जाके वो इंजीनियर वो नक्शा बनाता है घर का, तब जाके घर बिल्ड होता है। अगर एजुकेशन ही नहीं है तो कैसे होगा? I don't know. अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड पे मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जितना प्रोडक्ट्स एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रहा था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या था? फैक्ट्रीज में वर्कर्स का कमी होना। क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और के फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? वेल, प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर के बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था, और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती है। और इस बारी सोल पर्पस क्या होता है? इस बारी सोल पर्पस होता है
एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए और वो हो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज. Corporate types mostly who दिस इज ट्रू. आई एग्री विद दैट. लाइक जब भी हम एजुकेशन लेते हैं स्कूल में हमारा यही होता है, हमारा एम कि हम डिग्री लें, उसके बाद हम एक अच्छे से जॉब ढूंढे और फिर वो जॉब में सेटल हो जाए. आई एग्री विद दिस पॉइंट, बट एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैं एग्री नहीं करता. who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है. जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो होता है किसी फैक्ट्रीज में काम करना. और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है. उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बट दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी था. और वो दिक्कत था कि वो थे तो बस कुछ ही, और इतने बड़े आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था. साल होता है 1835. थॉमस बेबिंगटन मकाउले, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा एज द लॉर्ड मकाउले के नाम से, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है. एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है. और इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही चाह रहा है, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहा है, पर सच क्या था? वेल, आप खुद मकाउले से सुनो. Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं. ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं. अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बनाकर थे. ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे. आप शायद सोच रहे होंगे, वाह, लेकिन अगर वो एजुकेशन सही होता तो उनको ये पता चलता कि वो हमें गुलाम बना रहे हैं. अब तो वो रेसिस्ट करते ना. लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप नहीं है, लेकिन वो एजुकेशन जो दे रहे थे ना वो लोग, वो एजुकेशन ट्रैप था मेरे ख्याल से. ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था. पर खैर, अब तो 76 साल हो गए हैं आजादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है ना. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपने इसी सोच पे हंसी आएगी. आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है? आपको पता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा. आज हमारे देश में स्कूल्स एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस का जगह ज्यादा बनता जा रहा है. हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है. आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स बड़े ही प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पे करना है. आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था. लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है. आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपका मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है. पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते? दैट्स ट्रू, लेकिन यही तो चेंज करना है. मार्क्स से सब कुछ नहीं होता. तो मेरे लिए तो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, आपको पास होना जरूरी है, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में भी पता होना जरूरी है, लेकिन मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग. क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट भी उस स्टूडेंट से बहुत ज्यादा कर पाता है लाइफ में जो टॉपर है या फिर जो अच्छा मार्क्स ले आता है. ये माइंडसेट हमारा चेंज होना बहुत बहुत जरूरी है. तो हाँ, हम लोग अभी भी इसी बेसिस में जज करते हैं कि अगर कोई बंदा टॉप करता है तो हम सोचते हैं कि वो उसको ज्यादा पता होगा और वो लाइफ में अच्छा कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. इफ आई secured 90% मार्क्स इन मैथ, इट डजंट मीन लाइक आई नो एवरीथिंग. इट जस्ट मीन दैट आई नो मोर अबाउट मैथ. अगर मैं मैथ में 90% ले आऊंगा, साइंस में भी 90 और लाइक सोशल में भी 90, इंग्लिश में भी 90 लाऊंगा, तो इट डजंट मीन लाइक आई विल डू गुड इन माई लाइफ, बिकॉज वो तो मैंने रटा हुआ है ना. वो मैंने चैप्टर रटे हुए होंगे, क्वेश्चंस रटे हुए होंगे और मुझे सारे के सारे आंसर्स पता होगा, इसलिए मैं ले पाऊंगा. लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा. So you have to deal with your struggles, you have to deal with your problems, you have to deal with your
स्ट्रेस, योर एंजाइटी, एवरीथिंग इन रियल लाइफ। एंड इसीलिए रियल लाइफ में वो मार्क्स इतने ज़्यादा आपके काम नहीं आते। तो मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने है ना 8 क्लास में या फिर 10 क्लास में मैंने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। अगर वो प्रॉब्लम मुझे अब सॉल्व करने दिया जाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। वो मैंने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन डे टू डे लाइफ में मैंने इतने सारे स्ट्रगल्स, इतने सारे स्ट्रेस, इतने सारे एंजाइटी को भोगा है, मैंने उनसे डील की है। तो वो चीज़ें मुझे स्कूल में नहीं सिखाया गया था। सो इन दिस पॉइंट आई टोटली अग्री विद दिस वीडियो। करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स ये हमारे बच्चे को आखिर क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए। और अगर दूसरे शब्द में कहूं, हम सबका माइंड में यही था, मेरे माइंड में भी यही था, मेरे पेरेंट्स के माइंड में भी यही था कि एक अच्छे से जॉब मिल जाए। अराउंड 90% पीपल थिंक इन द सेम वे दैट आफ्टर गेटिंग द डिग्री लाइक वी शुड गेट अ गुड जॉब एंड देन आवर लाइफ विल बी सेटल्ड। बट टू डू समथिंग बेटर, लाइक लेट्स से टू गेट रिच, only job is not enough. Job can only give you survival, cannot make you rich. तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपने घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपके पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। लेकिन वो बॉस भी तो उसी सिस्टम से आया है ना। आई मीन लाइक द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो कमिंग फ्रॉम द सेम सिस्टम, राइट? सो ये नहीं है कि लाइक बस वो जनता के लिए वो सिस्टम बनाया गया है। जो उनको लीड करते हैं वो भी तो वही सिस्टम से आया है। अगर ये सिस्टम भी खराब होता तो फिर वो लीडर कैसे बन पाया? लेकिन वट एवर ही इज सेइंग नाउ मेक सेंस, क्योंकि वो सिस्टम हमें एक ही तरफ ऐसे लाद देती है कि चलो हमें जॉब करना है अच्छे से, लाइक डिग्री लेनी है, हमें रट्टा मारना है, बस हमें किताबी नॉलेज है। हाँ, एक चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर रियल लाइफ। बट जो बॉस है, हमारे जो लीडर है, वो भी तो उसी सिस्टम से आए हैं। एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरी है कि पढ़ने के बाद हमें जॉब ही करना है, या फिर अच्छे जॉब नहीं मिलोगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये कहना भी गलत है कि हमें एजुकेशन ही नहीं लेना। अगर एजुकेशन नहीं दोगे आज के ज़माने में तो तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तुम कुछ पढ़ नहीं पाओगे, कुछ लिख नहीं पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे डिफरेंट लोगों के साथ। लेट्स अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मैं यहाँ कनाडा में कैसे बात करूँगा, आई मीन कैनेडियन लोगों से? तो ये तो मुझे एजुकेशन की वजह से ही आया ना। तो एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो अपने सुपीरियर्स का रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पेचेक मिले, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। लेकिन अगर तुम कम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें कंपनी खोलने का वो आइडिया, कंपनी कैसे रन करती है, कंपनी को एक लेवल तक ले जाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, हाउ विल यू नो इफ यू डोंट हैव एजुकेशन? अब ये मत बोलना कि इलन मस्क ने किया है, बिल गेट्स ने किया है, मार्क जुकरबर्ग ने किया है। हाँ, उन लोगों ने किया है, लेकिन सब लोग उन जैसे नहीं होंगे। कितने सारे अनएजुकेटेड लोग फेलियर हुए होंगे यार, जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड। तो ये नहीं कि लाइक अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप एक इंडस्ट्री बिल्ड करेंगे, फिर आप उन लोगों को हायर करेंगे जो लोग एजुकेटेड है। ऐसे नहीं होते। बस कुछ लोगों का हम एग्जांपल दे रहे हैं इसके लिए, और फिर हम सारे लोगों को ये बोल रहे हैं कि लाइक एजुकेशन इज अ ट्रैप। हाँ, अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आप स्कूल जाएंगे, आप यूनिवर्सिटीज जाएंगे, फिर आप बस उसी सब्जेक्ट के लिए आप रट्टा मारेंगे, बस आपको किताबी नॉलेज होगा, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। फिर आप वहाँ से निकलने के बाद आप जॉब ढूंढेंगे, और फिर आप अच्छे जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, फिर आप जॉब मिलेगा, फिर आप सेटल हो जाएंगे, फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ, ये पर्सपेक्टिव पर चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन
एजुकेशन ही ना लेना ये तो और गलत और वर्स्ट होगा। मिलियनर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चंस करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे, पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज होती नहीं है कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ, और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पे आप सोचने के कैपेबल होते हो तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 15-20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही चीज सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाता है और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। बेरोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिया, लाखों रुपए आपने कॉलेज को दिया। हाँ, तो जॉब ना करें तब भी फिर क्या करें? अगर सभी लोग बिजनेस करने लगेंगे तो बिजनेस के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जो चाहिए मैन पावर वो कहाँ से आएगा? फिर जॉब तो करना ही पड़ेगा ना किसी ना किसी को। तो ये नहीं होगा कि सब लोग बिजनेसमैन, सब लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते यार। अरे ऐसा नहीं होता, जॉब भी करना होता है। और ये नहीं कि जॉब करना बुरी बात है, अच्छे जॉब भी होते हैं जो आपको बहुत सारे पैसे देते हैं। अगर जॉब की वजह से आपकी फैमिली चल रही है तो भी वो भी तो अच्छी बात है ना। तो ये क्या हुआ कि आपको बिजनेस ही करना है, ऐसा नहीं होता। अगर सब लोग बिजनेस करने लग गए, सब लोग एंटरप्रेन्योर बनने लग गए तो कैसे चलेगा? फिर सबके पास एक इंडस्ट्री खोलने लग गए, सब लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, सब लोग प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो ऐसे चलता है क्या? ऐसे भी तो नहीं चलता ना वर्ल्ड। लाखों रुपए आपने कोचिंग्स को दिया, उसके बदले में बस आप किसी तरीके से एक 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में आप लग जाते हो। पर स्टैट्स क्या है आपको पता है? The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42। हाँ, तो गवर्नमेंट भी इसमें उतना ही हकदार है ना। गवर्नमेंट इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं है, नेपाल में इम्प्लीमेंट नहीं है, इसके मतलब ये नहीं कि एजुकेशन सिस्टम खराब है इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा। तो वो देश की इकोनॉमी भी कैसी है, व्हाट आर द प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट, वो सारी चीजें इसमें निर्भर करती है ना। बस एजुकेशन सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। 2% ग्रेजुएट्स जिनका एज 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड है, और अगर जॉब मिल भी जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स अर्न करते हैं। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो ओके, बट ट्रक ड्राइविंग इज ऑल्सो ए स्किल, इट्स नॉट इजी। और ट्रक इतने बड़े बड़े होते हैं ना वो यूएस में, कनाडा में, कि आप लोग उसके अंदर आप एक घर बना सकते हैं। जैसे कि छोटा मोटा एक है ना, एक अपार्टमेंट जैसा आप लोग किचन अलग से, बेडरूम अलग ऐसे बना सकते हैं आप लोग अंदर। इतना बड़ा होता है यहाँ का ट्रक। और उतना ट्रक ड्राइव करना भी एक बहुत बड़ी स्किल है। ये नहीं कि लाइक कोई भी जाके ट्रक चला पाएगा। और वो ट्रक चलाने के लिए जो आप लाइसेंस लोगे ना, वो लाइसेंस लेना भी बहुत मुश्किल है और उसके लिए भी बहुत पैसा लगता है। ये इतना ईजी नहीं है कि लाइक चलो ट्रक चलाने वाला ज़्यादा पैसा कमा रहा है, क्योंकि ट्रक चलाना एक बहुत बड़ी स्किल मानी जाती है कनाडा और अमेरिका में। और फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो एजुकेशन चाहिए ना। आप कैसे पहुँचोगे यूएस ट्रक चलाने के लिए भी अगर आपके पास एजुकेशन नहीं, आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो एजुकेशन इज अगेन इट्स इम्पोर्टेंट। और वहाँ जाके ट्रक चलाना भी तो अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, अकेला स्ट्रगल करना पड़ता है, आप अकेले रहो, इमोशनल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, इतना लोनली फील करते हो, इतना एंजाइटी आपको सताता है, उसका क्या फिर? तो दिस इज ऑल्सो नॉट ईजी। तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम लोग स्कूल्स जाना छोड़ दें? क्या हम लोग कॉलेजेस जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए उसको चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। आज हमें बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने का जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? एंड इन दोनों का आंसर्स आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस के तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज का सिचुएशन क्या है? The assumption is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the
दैट्स ट्रू, क्योंकि हम लोग ना एक ही तरफ ऐसे ऐसे भाग रहे हैं। जैसे कि लेट्स से अगर आईटी में ज़्यादा पैसा है तो सब लोग आईटी पढ़ रहे हैं, है ना? तो सब लोग अगर आईटी पढ़ेंगे तो उसमें भी वो एक कोटा तो खत्म होता है ना। उसके बाद तो आप जितने भी कितने भी क्वालिफाइड हो, आप कितने भी स्किलफुल हो, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जगह है ही नहीं। अगर चाय वाला ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो सब लोग चाय के इंस्टॉल डाल रहे हैं कि चलो यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे पैसा है। तो अगर सब लोग चाय डालेंगे तो चाय पिएगा कौन फिर? यही पर्सपेक्टिव हमें चेंज करनी है कि अगर किसी एक फील्ड में स्कोप है और सभी लोग उसी फील्ड में जाएंगे तो फिर वो स्कोप कहाँ से कैसे होगा? फिर वो तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं बचता किसी और लोगों के लिए। The best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जी कर मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत छोड़ पाए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पे चेक टू पे चेक लाइफ में अटक कर रह जा रहा है और हर वक्त बस इसी डर में जी रहा है कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और फिर वो जॉब भी नहीं करेगा तो फिर वो पेचेक भी नहीं आएगा ना, फिर सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। यही तो दिक्कत है हमारी, क्योंकि हमारा एक माइंड सेट ही थोड़ा सा ऐसा ही ब्रेन वॉश एक हुआ है बचपन से। लेकिन एजुकेशन एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट तो है। जो ये वीडियो बना रहे हैं उनके पास इतना नॉलेज कैसे आया कि ये कर रहा है, एजुकेशन ट्रैप कर रहा है? उनके पास ये नॉलेज कैसे आया? क्योंकि ही इज एजुकेटेड। तो एजुकेशन ही ये नॉलेज दे रहा है ना अभी, इसलिए एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही। डर के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दांव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल, ऑल दे हैव इज अ सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे, अपने लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकलते थे। अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो। और That's true, we can learn, but without college degree you can't get a job. So कंपनी तो कॉलेज डिग्री मांगती है ना। फिर लेट्स से मैंने कोर्स लिया यूआई डिजाइन का, ठीक है, मैंने कोर्सेरा में एक कोर्स लिया अबाउट 6 मंथ, और कोई एक बंदा है जिसने वही उसी कोर्स को किसी यूनिवर्सिटी में किया है, तो कंपनी किसको प्रेफर करती है, मुझे या फिर उस बंदे को? तो कंपनी में अप्लाई करने के लिए भी तो सर्टिफिकेट तो चाहिए ना। दिस इज ट्रू, लाइक वी कैन गेट मोर नॉलेज, मोर स्किल्स with the low amount of money that we pay to the university or to the college, but to get the job the company prioritize the university degree, और वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किए, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को उतना इंपॉर्टेंस ना दें, उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें exactly this was my point. This is exact same thing what I told before, right? So मार्कशीट चाहिए, मार्क्स भी चाहिए, लेकिन मार्क्स से सब कुछ नहीं होता। आपका प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द स्किल्स यू हैव that matters the most. बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पे वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आज हम जेईई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू। सो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस वीडियो, आई रियली लाइक इट। मुझे स्टार्टिंग में तो इतना लॉजिकल नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में जाके दिस वीडियो मेक सेंस, और ये बहुत लॉजिकल भी है, और वॉट एवर ही इज सेइंग इज सो ट्रू। हमें खुद ना एक ठहरने की भी जरूरत है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे किस चीज़ में मन है। ये नहीं कि लाइक एजुकेशन नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन के बाद हम क्या करना चाहते हैं वो हमें डिसाइड करना पड़ता है, और फिर उसके लिए हम रिसर्च करना पड़ता है। सो आई टोटली अग्री विथ हिम, लाइक वॉट एवर ही इज सेइंग इज सो ट्रू, बट ऑल ऑफ अस नीड टू डू रिसर्च, नीड टू हैव स्किल्स, नीड टू हैव लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज rather than the
theoretical knowledge. If we only have theoretical knowledge, then it doesn't make any sense. But without theoretical knowledge, we cannot have practical knowledge. So we need to combine both of it.